अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे से होंगे इंशाल्लाह. Today I am back in episode number 7 with a new guest. Homa Azam is her name. She is the director of Sprout and she has done her MPhil, and she's also a teacher trainer from the platform of Teach and TDC. And how are you, Miss Homa? Assalamu alaikum. Alhamdulillah, I'm good. Walaikum assalam, Javeri. How are you? I'm good, thank you. Thank you so much for joining in. Most welcome. ओके सो आज हमारा टॉपिक वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स रिलेटेड टू ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग. एंड वैसे ये टॉपिक जो है वो बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे. आई एम रियली श्योर बिकॉज आजकल आपको पता है कि एवर सिंस द पैंडेमिक हैज़ हिट इन, तो हमारे पास ऑनलाइन काम की अपॉर्चुनिटीज और मार्केट कितनी यानी कि एक बहुत बढ़ गई है, और कितनी ज़्यादा हमारे पास Exactly. ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज इससे रिलेटेड है ना. तो हम इसी के हवाले से Exactly. पूरी इन डिटेल बात करेंगे. हमारी गेस्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि इन डिटेल पूरी यानी कि एनालिसिस बताएंगी कि एज टू हाउ टू गो अबाउट फ्रीलांसिंग, और उसके यानी कि क्या आपका मतलब फ्रीलांस के अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे ऑप्ट How करते हैं to तो start यस and कैसे आप इसे how to लेके do, चलेंगे. what to do, when to do, and where to do, actually. और आई रियली लव द पार्ट जो एक आपका जो यानी कि है आपका एम मिस उमा के आप पाकिस्तान की बिलखुसूस खवातीन के लिए यानी कि कुछ करना चाहती हैं जिसमें आप उनको Exactly. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का यानी कि एक एलिमेंट सिखाना चाहती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन दिस एरा, इन दिस सेंचुरी. एवरी सिंगल वुमन आउट देयर शुड बी आई मीन हैविंग दिस स्किल कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए. तो घर बैठ के फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम, हाउ कैन यू रन योर ओन वर्क यू नो by taking care of your other responsibilities as well, उनको जगल करते हुए कैसे पॉसिबल है ये सब चीज़ें. तो हमारी गेस्ट आज आपको ये सारी चीज़ें बताएंगी इंशाल्लाह. ओवर टू यू मिस उमा. All right. So first of all, Javeri, I would like to give a brief introduction about me. Like Sure. I started my career when I got married. So at that time, that seemed that the doors were closed for me. But then I decided to continue, and I continued with my studies, my job, and I have worked over 12 years in the education sector, working as a teacher, as a coordinator, as a lecturer, and recently I was working as a deputy head for Happy Home School. So in these 12 years, I have learned a lot in education sector, and I have learned that teaching is a profession which is the most demanding in the world, the most effort taking, but in the meantime, it is the most lowest paying in terms of when जब salaries की बात आती है तो it is the most least paying job for teachers in Pakistan especially. Otherwise, अगर आप दूसरे countries की बात करें तो it is a well paid job in other countries. But here in Pakistan, it is unfortunately the least paying job. Right? So मेरा थोड़ा सा being worked in education sector for 12 years, मुझे थोड़ा सा यही एक चीज मेरे अंदर काफी तंग मुझे करती थी कि जी इतनी मेहनत करने के बाद भी, बिकॉज ये कहने को तो हमारी सिर्फ थोड़ी देर की जॉब है 2 बजे तक की, बट स्टिल टीचर्स जो है वो पूरा दिन लगी हुई होती हैं, पूरा दिन काम कर रही होती हैं. सो दैट इज वाई मैंने अपनी जॉब भी इस टाइम पे स्विच की, and now I am into freelancing. I am doing freelancing along with the training sessions conduction regarding education, regarding everything, regarding freelancing. And I want teachers to start working as a freelancer so that they can earn something extra for themselves apart from their regular earnings, right? So basically the concept was that Mera, recently I have completed my MPhil in educational leadership and management as well, and inshallah I'm going to pursue my PhD in the future. So I want to connect, yes, inshallah. So I want to connect education sector with the freelancing sector, just because कि इसको अभी खैर अभी आगे हम जब स्टार्ट करेंगे तो we will see. So let's start, and फिर हम साथ साथ सारी बातें डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह. So this basically was a brief introduction about me, and table of contents. So I think we should you should present my slides first. Sure. Okay. So is the screen visible? Yeah. I think it's visible for me. Yes. Okay. So basically, our topic of today discussion is freelancing trends and opportunities. ठीक है. So इसके अंदर जो हम बात करने वाले हैं, we are going to talk about what, why,
when, how, and where. Basically, we will be learning about what of freelancing, why of freelancing, when to start freelancing, how to do freelancing, and where to do. So, जब हम इन बातों के जवाब देंगे तो automatically you people will get a clear idea कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है. This was a brief introduction about me. I already have told that कि freelancing industry में I have worked for almost 2 years up till now. And I am a graphic designer, I am a content writer, I am a digital marketing expert. और अब मैंने recently मैंने web development भी start कर दी है. मैंने अपनी एक website खुद भी बनाई है. You people can visit as well. And I have started Sprout with a aim in my mind कि मैं थोड़ा सा एक training sessions conduct कर सकूं through Sprout और teachers के लिए कुछ कर सकूं in this freelancing sector. So let's start with it. And the first slide is about life begins at the end of comfort zone. So basically, this is a very important idea when switching from one profession to other. Basically, we are not talking about switching actually. हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साथ साथ आप काम करें. When you will see कि आप अपने आप को देख सकें कि हाँ जी मैंने अब इतना earn करना start कर दिया that I can leave my job, then I will be obviously leaving my job. तो जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं, आपका सक्सेस, आपका ग्रोथ स्टार्ट ही तब होता है, आपका काम स्टार्ट ही तब हो रहा होता है. ठीक है, तो अब व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग है क्या? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग इज बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग, कि आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दी तो बस आपकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो गई. इट इज नॉट लाइक दैट. बीइंग अ फ्रीलांसर यू कैन वर्क फॉर समवन फॉर पार्ट टाइम. फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है बेसिकली आप अपने लिए एम्प्लॉयड होते हैं. आप यू आर वर्किंग एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के लिए बहुत लंबे अरसे तक या आप बाउंड नहीं होते, आप फिक्स नहीं होते काम करने के लिए. अगर मैं एक एग्जांपल दे सकूं तो जैसे अगर मेरे हस्बैंड एज अ ट्रैवल एजेंट काम करते हैं, तो इफ ही इज सिटिंग इन अ ट्रैवल एजेंसी सो डेफिनेटली ही इज बाउंड टू फॉलो द टाइमिंग्स, फॉलो द थिंग्स. लेकिन अगर वो एक फ्रीलांस डिक्टिंग एजेंट काम कर रहे हैं राइट नाउ, तो ही इज नॉट bound to follow the timings. वो अपनी मर्जी के मालिक हैं. When he want to go, when he want to work, when he want to not. तो freelancing is basically a professional freedom. It's the name of a professional freedom. ये सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग का नाम नहीं है freelancing. freelancing में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं जो कि हम आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे. तो freelancing से बहुत सारे लोग इस टर्म को मिसकंसेप्ट करते हैं, पैसिव इनकम. So what is passive income? पैसिव इनकम इज बेसिकली द इनकम. पैसिव इनकम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि पैसिव इनकम स्लीपिंग इनकम कहलाती है. एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्लीपिंग इनकम? बिकॉज जब आप सो भी रहे होते हैं तब भी आपकी जो इनकम है वो जनरेट हो रही होती है. तो पैसिव इनकम इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग इनकम. और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि पैसिव इनकम और फ्रीलांसिंग में कि आप कह सकते हैं कि जी फ्रीलांसिंग इज सॉर्ट ऑफ पैसिव इनकम, कि वो उसके अंदर आ जाती है. बट पैसिव इनकम में आपको जो एफर्ट्स होती हैं वो आपकी बहुत कम रिक्वायर होती है या होती ही नहीं है. अगर मैं थोड़ी सी इसमें आपको एक डिफरेंस दिखा सकूं कि फ्रीलांसिंग में जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही हूँ, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में एक स्किल आनी चाहिए, मैं सीखूंगी, मैं काम करूंगी तो मैं अर्न करूंगी. मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है, मुझे अगर ई कॉमर्स आता है, तो ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग दैट, तभी मेरी अर्निंग होगी. लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है कि आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, आप एफर्ट करके छोड़ देते हैं एंड देन इट कंटिन्यूज इटसेल्फ, राइट. तो जैसे कि अगर आपने एक वेबसाइट स्टार्ट की, आपने उस पर गूगल एडसेंस लगा दिया, अब आपको क्या करना है, सिर्फ उसके ऊपर एक कंटेंट अपलोड करना है एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग इटसेल्फ. और आप सो भी रहे होंगे तो आपके अकाउंट में डॉलर्स गिर रहे होंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे. सिमिलर फॉर यूट्यूब चैनल, सिमिलर कि आपने कोई अपनी पार्किंग एरिया, आपने अपना पार्किंग लॉट रेंट आउट कर दिया, आपने अपनी एक ऐप बना ली, ऐप लोग यूज कर रहे हैं तो आपके पास पैसे आते जा रहे हैं. आपने प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स ऐसी यूज कर ली जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको अर्निंग हो रही है. तो दिस इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पैसिव इनकम जो मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, गेटिंग माय द पॉइंट. मुझे साथ साथ इंटरप्ट कर देना, नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम लगे कि हाँ जी ये चीज क्लियर नहीं हो रही है. ठीक है, तो पैसिव इनकम और फ्रीलांसिंग की डिफरेंस को समझना इसलिए जरूरी है कि फ्रीलांसिंग इज अ टर्म जहां पर हम कहते हैं कि यू विल बी रिक्वायरिंग अ स्किल टू प्रमोट योर सेल्फ, टू वर्क फॉर योर सेल्फ. लेकिन पैसिव इनकम के लिए आपको ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट स्किल नहीं चाहिए होती, लेकिन आपको टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए कि व्हाट विल यू बी डूइंग टू अर्न पैसिव इनकम.
ठीक, आप एक ई बुक लिख के भी पीडीएफ का डाल सकते हैं, उसको आप चार्ज एबल बना सकते हैं कि जी whoever will be downloading आपके पास इतने अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. सो दिस वुड बी द पैसिव इनकम. अच्छा, अब आ जाते हैं हम फ्रीलांसिंग के ऊपर. सो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग के भी अब दो टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल. अब इस ट्रेडिशनल में क्या होता है एंड नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है? देखो, ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग जो है वो आपकी होती है कि आप एक्सेप्ट करते हैं किसी की ऑफर को. ठीक है, अगर थोड़ा सा इसके लिए अगर किसी ने फाइवर पे काम किया है या किसी को आइडिया है कि कोई कि जैसे ना आप वो जॉब आ रही होती है, ठीक है, और आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन ट्रेडिशनल में आप अपनी सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं. आपने गिग्स बना के डाली होती है ना, मतलब फाइवर पे, अपवर्क पे तो आप गिग्स बनाते हैं, मार्केट पे फिर सामने वाला जो कोई ढूंढ रहा हो जॉब, अपवर्क पे नहीं होता. देखो, इसमें यहीं पे डिफरेंस समझने की जरूरत है. अपवर्क एंड फाइवर आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. अपवर्क जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करता है, यानी उसमें लोग अपनी जॉब्स को पोस्ट करते हैं, ठीक है, और हम उन जॉब पे अप्लाई करते हैं बाय सेंडिंग आवर प्रपोजल. एंड इन फाइवर में हम अपनी सर्विस ऑफर करते हैं एंड लोग हमारी सर्विस खरीदते हैं. ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल वे एंड नॉन ट्रेडिशनल वे है. अब इसके अंदर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है. अगर मैं ट्रेडिशनल की थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो ट्रेडिशनल में आपके साथ आ जाते हैं कि आप किसी के साथ कनेक्ट हैं, कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, उसने किसी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट डाली हुई कि जी मेरा ये प्रोजेक्ट इतने से इतने कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टार्ट हो रहा है, एंड यू आर एक्सेप्टिंग देयर ऑफर, सो यू आर वर्किंग ट्रेडिशनली एज अ फ्रीलांसर. आप उसके साथ बाउंड नहीं है, आप सिर्फ उस स्पेसिफाइड टाइम के लिए बाउंड है कि 6 महीने मैंने काम करना है एंड देन आई विल टेक अ पार्ट. और सिमिलरली नॉन ट्रेडिशनल में आप एज जब अगर वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं आप किसी के लिए, कि किसी ने आपने अपनी सर्विसेज ऑफर की, अगर आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कोई रखना चाह रहा है तो ऑब्वियसली ही विल कॉन्टेक्ट यू. आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, अगर आपको कोई रखना चाह रहा है, आपकी सर्विसेज पसंद है, अपना काम डिस्प्ले करते हैं, सबसे मेन चीज. ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल में आप अपना काम डिस्प्ले करते हैं, आप अपने आप को बेचते हैं, आप अपनी स्किल को सेल करते हैं. और ट्रेडिशनल वे में आप अप्रोच करते हैं अपने एम्प्लॉयर को या अपने काम करने वाले बंदे को, उस बंदे को जिसको वो नीड है वो काम की. अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर सिनेरियो ये है कि जब ये अपवर्क और फाइवर पिछले दिनों तक तो इस तरह ही काम करते थे कि ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल पे थे, लेकिन अब क्योंकि जॉब मार्केट इतनी एक्सटेंड हो गई है फ्रीलांसिंग की कि फाइवर ने भी अपने कहीं ना कहीं एक जॉब पोस्टिंग की स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है, और अपवर्क ने भी कहीं ना कहीं अब एक अपनी प्रोजेक्ट डिस्प्ले की स्ट्रीम स्टार्ट कर दी. यानी अब आप अपवर्क पे अपने प्रोजेक्ट्स बना के डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और अब आप फाइवर पे जॉब्स ऑफर्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. तो ऑलमोस्ट अब दोनों प्लेटफॉर्म्स दोनों वेज में काम कर रहे हैं. गॉट दैट? सो ये बेसिकली एक रफ स्केच मैंने थोड़ा सा फ्रीलांसिंग कर दिया ताकि लोगों को आइडिया हो कि एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग है क्या और कितने तरीके से फ्रीलांसिंग में काम हो सकता है. जरूरी नहीं है लोगों के पास होता है कि फ्रीलांसिंग है तो बस अपवर्क और फाइवर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. फ्रीलांसिंग में आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ डाटा एंट्री, इसकी मैं छोटी सी एक एग्जांपल ऐसे भी दूंगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि इट्स बीन अ कपल ऑफ लाइक इयर्स, यू कैन से नाउ कि कमिंग दिसंबर में 2 years हो जाएंगे दैट आई एम आउट ऑफ स्कूल्स, राइट. आई एम नॉट ट्रेडिशनली टीचिंग इन एनी स्कूल एनीमोर एट द मोमेंट, एंड आई हैव जस्ट लाइक स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम. अब अगर वर्किंग फ्रॉम होम में जरूरी नहीं है मैं इन वेबसाइट्स पे जाकर के मैं कोई ऐसा ही काम करूं, मैं स्टूडेंट्स भी पढ़ा रही हूँ, एंड इफ आई एम माय ओन बॉस एंड आई फाउंड देम थ्रू माय ओन एफर्ट अकॉर्डिंग टू माय ओन hunt, you know, so that's again a source, you can say, a kind of freelancing. Yes, and you are doing a freelancing working as a freelancer, like you are offering your services, you are offering your skill, you are selling yourself, so automatically you are offering something to others to buy. So this is basically freelancing. ठीक है, यहाँ पे this point is very the example was very good, और this is basically freelancing. So why? अब करनी क्यों है freelancing? मतलब क्यों करनी चाहिए, क्यों किसी को अपना प्रोफेशन छोड़ के फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए, या क्यों साथ साथ आप कुछ हम इतना जोर दे रहे हैं कि जी फ्रीलांसिंग करनी जरूरी है या ये वक्त है फ्रीलांसिंग करने का. देखो, सबसे पहले तो आपका प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस. ठीक है, आज के दौर में हमें सबको पता है कि इन्फ्लेशन इज एट इट्स पीक. फिर आपकी जो एंजाइटी लेवल लोगों का, क्योंकि ज़ाहिर है वर्कलोड इज एवरीवेयर. हमारा अगर टीचिंग प्रोफेशन ही को हम देख लें तो हमें पता है कि टीचर्स कितनी वर्कलोड का शिकार होती हैं स्कूल्स के अंदर. तो सबसे मेन चीज है कि आपकी जी प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस आपको मिल जाती है. आपको पता होता है कि आपने जहां जब दिल चाहे आपने काम करना है. उसके बाद आ जाती है एक चीज, कंटेंट. अब आज की जो मार्केट है, आज की जो दुनिया है, इसमें मार्केटिंग इज एवरीथिंग.
और हम फ्रीलांसिंग में ये टर्म यूज होती है दैट कंटेंट इज किंग। आज के दौर में कंटेंट जो है ना, वो आपको या तो यहाँ उठा के बिठा देगा या आपको यहाँ गिरा देगा। ठीक है, तो कंटेंट इज किंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले हम क्या देखते थे कि किसी को कुछ बेचना भी होता था तो वो एक टीवी पे टिपिकली इश्तेहार आता था, जी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, फिर हमें दिल करता था अच्छा नहीं देखनी, जस्ट स्विच किया हमने रिमोट से, कंट्रोल से, और हमारा जी वो चला गया, हमें नहीं देखना। अब ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यू विल बी वॉचिंग एड्स, इफ यू आर लुकिंग एट फेसबुक तो यू आर वॉचिंग एड्स एवरीवेयर। आपकी गूगल पे आप देख रहे हैं, आपको मल्टीपल साइट्स पे, मतलब कोई भी साइट हो एग्जैक्टली हर जगह बीच में एड्स होंगी। आपकी मार्केटिंग ऐसी हो गई है कि स्कूल ओनर को भी, हर बिजनेस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अगर एक बच्ची घर में कोई ज्वेलरी भी बना के बेच रही है ना, तो शी नीड्स मार्केटिंग, शी नीड्स टू मार्केट हरसेल्फ। अब वही वाली बात आ जाती है कि उसका कंटेंट जितना अच्छा होगा उस मार्केटिंग के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है अब उस कंटेंट को लिखने के लिए कंटेंट राइटर चाहिए, उस कंटेंट को बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, उसको मार्केट करने के लिए डिजिटल मार्केटर चाहिए, उसकी इनवॉइस मेंटेन करने के लिए डाटा एंट्री एक्सपर्ट चाहिए। तो अब फ्रीलांसिंग इज लाइक कि हर जगह अब आपका कंटेंट चाहिए। तो आप सबको छोड़ो, आप अपने फेसबुक और अपने लिंक्डइन स्ट्रीम की बात करो। अगर आप अपने लिंक्डइन और फेसबुक स्ट्रीम पे अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली लोग इन्फ्लुएंस होना शुरू होते हैं, अच्छा ये बंदी शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब और ये तो कुछ बड़ा अच्छा काम कर रही है, बिकॉज इसकी बड़ी इंटेलेक्चुअल पोस्ट होती हैं। तो कंटेंट इज राइट नाउ किंग टू ब्रिंग ट्रैफिक टू योर सेल्फ। आपको अपना आप बेचना है, अपना आप बेचने से मुराद ऑब्वियसली मेरा ये नहीं है, अपनी स्किल बेचनी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने कौन से एस्पेक्ट्स शो करने हैं, अपने अपने आप चीज को कैसे प्रमोट करना है। तभी आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलेगा, तभी आपको फेसबुक पर ट्रैफिक मिलेगा, तभी आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, और जब फॉलोइंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रीलांसिंग इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट इज जरूरी। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि वाई एंड वाई नॉट, यानी एडवांटेजेस भी हैं फ्रीलांसिंग के, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास ऑब्वियसली हम बात कर चुके हैं कि फ्लैक्सिबिलिटी है, हमें ये पता है कि हमें किसके साथ काम करना है, हमें किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। देन हमारे पास आ जाता है कि हम अपनी इनकम, अपने रेट खुद सेट कर सकते हैं, हम अपने आवर्स खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स। देन हमें ग्लोबली काम करने का मौका मिलता है, हम ये नहीं होता कि जी हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम पीकेआर में ही अर्निंग करेंगे, वी कैन अर्न इन एनी करेंसी। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? आइसोलेशन सबसे बड़ी बात, कि अब जैसे आजकल मैं फ्रीलांसिंग में काम कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ी सोशल ज्यादा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक अकेले काम करने का वो हो रहा होता है। देन जॉब सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इट्स अनसर्टेन, कभी है कभी नहीं है, कभी काम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि आपको हर चीज खुद हैंडल करनी है, अपनी मैनेजमेंट, अपनी प्रोजेक्ट डिस्प्ले, अपनी टाइमलाइन, अपनी डेडलाइंस, एवरीथिंग यू विल हैव टू सेट बाय योरसेल्फ। इसके बाद आपके पास एम्प्लॉयर फंडेड बेनिफिट्स नहीं होते, जैसे प्रोविडेंट फंड है, यूओबीआई है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ टाइम ग्रेजुटी है, जो भी चीजें इन दी एंड मिल रही होती हैं एम्प्लॉयर्स की साइड से, वो आपके पास नहीं होती। फिर इसके बाद आ जाती है स्पेसिफाइड डेडलाइंस, कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेडलाइंस उसकी भी मीट करनी होंगी। अगर आप उसको काम 2 दिन में चाहिए तो यू विल हैव टू डिलीवर, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप उसके पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स योर क्रेडिबिलिटी। ठीक, तो ये चीजें हमारी एडवांटेजेस में आ जाती हैं। इसके बाद ये एक चीज है छोटी सी कि जी दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड। इस वक्त हमारी जो फ्रीलांसिंग मार्केट है, और इसमें जो कंट्रीज में अगर आप देखो तो अभी 2-3 साल पहले तक इंडिया हमसे पीछे था, बट नाउ इंडिया इज नंबर 2 और पाकिस्तान नंबर 4 पे था। अब पाकिस्तान इज एट नंबर 8। तो हम बहुत पीछे हैं अभी इस वक्त अपनी फ्रीलांसिंग मार्केट में, और हमारे पास फ्रीलांसर्स की बहुत कमी है रेदर देन अदर कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इस वक्त फ्रीलांस, अब हर मुल्क ही कर रहा है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि हम सस्ते एम्प्लॉयर खरीदें। जो हायर पेड कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली यूके, यूएसए, कनाडा, ये हायर करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे कंट्रीज से। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, हमें एज अ पाकिस्तानी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, वी कैन अर्न इन डॉलर्स बाय वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ स्टेटस हैं कि टॉप हायरिंग कंट्रीज हमारी वही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, किंगडम, कनाडा। और जो हमारी फ्रीलांसर्स की कंट्रीज हैं जिसमें हमारे काम करने वाले हैं, उसमें भी अगेन यूनाइटेड स्टेट्स इज एट नंबर 1,
India is at number 2, Pakistan is at number 4, and it goes on. ठीक है. अच्छा, अब why teachers? मैं क्यों teachers को इतना ज्यादा promote कर रही हूँ? Because first of all, I worked as an educator for 12 years. I can see the problems. I can understand the problems of teachers. I can know the issues teachers are facing nowadays. I can understand the inflation rate. फिर सबसे मेन चीज कि they are intellectual. Freelancing के लिए आपको किसी डिग्री, एम्पैथी का फैक्टर वहां पर है ना, एक एम्पैथाइज कर सकते हो आप, बिकॉज आपने ऑलरेडी उस जूते में पैर रखा है खुद, यू कैन फील दैट थिंग. एग्जैक्टली. तो कंपैशन. और मेन चीज देखो ये भी है कि फ्रीलांसिंग के लिए ना देयर इज नो डिग्री, कोई डिग्री नहीं चाहिए. यू नीड इंटेलेक्चुअल पीपल, यू नीड हाँ, आपको कॉग्निटिवली स्ट्रॉन्ग पीपल चाहिए. आपको चाहिए कि जो हाई इंटेलेक्चुअल बंदा हो वो इसको बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेगा. तो टीचर्स आर द बेस्ट वंस. फिर आपकी हाईली पेड अंडरपेड जॉब्स. फिर आपके पास टीचर्स के पास रिड्यूस जॉब आवर्स हैं, वो घर पे आके अपना काम आराम से फ्रीलांसिंग के तौर पे मैनेज कर सकते हैं. फिर टीचर्स क्योंकि कंटिन्यूअसली पब्लिक डीलिंग कर रही होती हैं, पेरेंट्स से डील कर रही होती हैं, अपने स्टाफ से डील कर रही होती हैं, दे हैव एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स. फिर आप क्या कहते हैं कि दे हैव एन एक्सप्लोरर इनसाइड देम. उनको पता होता है कि लेसन प्लान करने के लिए उनको कहाँ एक्सप्लोर करना है, उनको क्या चीज ड्रॉ करने के लिए कहाँ एक्सप्लोर करना है. तो टीचर्स आर द बेस्ट. we can say they can take the opportunity very well. अच्छा, अब हम आ जाते हैं वैन पे. अच्छा, मुझे लग रहा है मेरी पीसी का थोड़ा सा चार्जिंग का इशू मुझे यहाँ लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगी. तो मैं ना अगर स्लाइड्स नहीं भी होती हैं तो मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को ब्रीफ पहले दिखा दूं क्या? श्योर, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो ये अच्छा वैन पे आते हैं पहले जरा इसको, फिर थोड़ा सा मैं दिखा दूंगी आगे. वैन टू स्टार्ट. अब कब स्टार्ट करनी है एक टीचर को, कब ये लगना चाहिए कि जी अब मेरा टाइम है, मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए फ्रीलांसिंग. सो बेसिकली देयर इज नो प्रीडिफाइंड टाइम. कोई ऐसा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर रेडी विथ योर स्किल्स. आपके पास कोई ऐसी स्किल है, चाहे वो ऑनलाइन ट्यूशन हो, चाहे आपको डाटा एंट्री करनी बहुत अच्छी आती है, आप किसी एडमिन के इदारे में काम कर रहे थे, चाहे आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोई छोटा सा कोर्स आपने कर लिया, एक स्किल होनी जरूरी है. चाहे टीचिंग की स्किल है तो बस वही बेस्ट है. वाले कॉल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए होते हैं, बहुत सारे कॉल रिप्रेजेंटेटिव्स आजकल बहुत जॉब है. इवन अब तो अपॉइंटमेंट सेटर की जॉब्स इतनी ज्यादा एक्सटेंसिवली आ रही है कि वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इसके बाद आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए. पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपके पास कुछ आपका काम बना हुआ होना चाहिए, डिस्प्ले शोकेस करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए. अगर आप टीचर हैं तो आपके लेसन प्लान्स, आपकी टीचिंग वीडियोस, दैट कैन बी योर पोर्टफोलियो. अगर आप ऑनलाइन कोई अर्निंग कर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी द ब्रोशर्स, आपके एग्जैक्टली आपके डिजाइन आपके पास होने चाहिए. अगर आप राइटर हैं तो आपकी राइटिंग स्क्रिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए. सो पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट. वो भी हम अभी आगे देखेंगे कि हाउ और कैसे बनाना है पोर्टफोलियो. इसके बाद आ जाती है कम्युनिकेशन, जो कि टीचर्स में वैसे तो होती है, लेकिन अगर नहीं है, थोड़ी में किसी में कम है, तो यू कैन एनहांस दैट. जब ये 3 चीजें आपके पास आ जाएं, दैट इज द राइट टाइम यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग. ठीक है, तब आपको पता होता है कि अब आप एज अ फ्रीलांसर यू कैन बी सक्सेसफुल. अच्छा, अब में से कोई 2 चीजें भी हैं तो हमें नहीं आपको लगता है कि कम से कम बंदा एक स्टार्ट ले ले, एटलीस्ट वक्त के साथ पॉलिश हो जाएगी. बिल्कुल. देखो चीजें ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि मैं आज फ्रीलांसिंग शुरू कर रही हूँ तो कल से मैं अर्निंग स्टार्ट कर दूंगी. इट विल नॉट हैपन लाइक दिस. आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही आप टीचिंग में भी आप पहले छोटी सी जॉब करते हैं, फिर आप आगे आगे प्रमोट होते चले जाते हैं. तो हर जॉब भी आपका टाइम मांगती है, हर प्रोफेशन टाइम मांगता है. तो जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, शुरू में आप किसी के लिए फ्री काम करते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो डेवलप होना शुरू हो, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट टेकिंग the position you want. ठीक है. अच्छा, अब डेवलपिंग अ स्किल के लिए आपको क्या देखना है? सबसे पहले कि आपकी स्किल ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में डिमांड कर रही हो. ठीक है. अब इस पे आप सबसे मेन, अगर आप लोगों ने कभी ये सुना हो इसका नाम इकिगाई. दिस इज बेसिकली ए जापानीज टर्म इकिगाई. दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मुझे एक्चुअली ये बड़ी पसंद है और मैंने एक ट्रेनिंग सेशन में ये देखी थी. और ये एक इन जापानीज का एक अपना बनाया हुआ एक वो है, उनका रीजन फॉर बीइंग है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर हम कहते हैं ना, अक्सर ये हम जुमला कहते हैं कि अगर इफ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन तो यू विल एक्सप्लोर योर वेज. तो वही वाली बात आ जाती है कि जो काम आप अगर आप इस डायग्राम को बहुत गौर से देखें तो आपकी नीड्स और जिसके लिए आपको पे किया जाएगा,
जिसमें इस आप डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन कर दें ताकि ऑडियंस को भी क्लियरली इसके अंदर जो है अच्छा, ना वो मैं एक विजुअलाइज हो जाए सेकेंड, एलिमेंट्स। अगर ये हो सके या तो तो मैं स्क्रीन लेट पर मी सी। खाली एक सेकंड वो ले आती हूँ फिर, एक सेकंड। नहीं, ये ऐसे नहीं हो रही भाई। Presentation actually went away. Just give me a minute. Where did it go? I was just trying to. Okay, it's back on the stream. इसको हो रही है, जूम इन हो रही है थोड़ा सा। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब गया, मेरा स्क्रीन ही गई, प्रेजेंटेशन, मेरा पीसी बंद हो गया। ओह गॉड। चले आ, आप उसे वर्बली समझा दे, कोई मसला नहीं है, हम पिक्चर है ना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे वो वाली। ठीक है। अच्छा, तो हमरा आई वांट लाइट ऑन माय फेस प्लीज। अच्छा जी, तो बेसिकली इकिगाई जो है वो अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइट आज चली गई है, और जस्ट बिफोर द सेशन No, तो मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हूँ। it's okay. It's all तो about, ये you know, खैर ये making, just प्रॉब्लम, putting our word out there and making the audience understand, and it's just completely fine. हम इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी कि हम जो बात डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो आज हम नॉलेज या स्किल्स देना चाह रहे हैं लोगों को, वो उन तक पहुंच जाए। हम पिक्चर ड्रॉप कर देंगे, कमेंट में आप एग्जैक्टली ऐसे ही बता दें। एग्जैक्टली। अच्छा, तो बेसिकली इकिगाई जो है वो आप अगर जस्ट लिखेंगे ना नेट के ऊपर इकिगाई, तो ऑटोमेटिकली इट विल शो यू अ पिक्चर ऑफ, ये वेन डायग्राम आ जाएगी आपके पास, और उसमें यही है कि जब आपका प्रोफेशन, आपका पैशन, यानी आपको स्किल ऐसी चूज करनी है कि जिसमें आप को ये पता हो कि जी मैं इसमें अच्छा हूं, ठीक है, मार्केट को ये चीज चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग करने के लिए कंटेंट चाहिए, कंटेंट में ग्राफिक्स भी हो सकती है, कंटेंट में आपकी वो पोस्टर्स हो सकते हैं, बैनर्स होते हैं, आप वो डिजाइन कर सकते हैं। इस वक्त की स्किल्स इन डिमांड है। फिर आजकल के दौर में लोग क्योंकि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब बहुत आजकल मार्केट में नीड है। तो अगर आप टीचर हैं तो आजकल ऑनलाइन टीचिंग इतनी ज्यादा फेमस हुई हुई है कि जी लोगों को जाना नहीं पड़ता, घर में बैठ के बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद से तो हम आदी हो गए ना इस चीज के कि ऑनलाइन और ट्यूशन ऊपर से पढ़ना कोई आपको पता मुश्किल है बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो है वो, जब हमारे पाकिस्तानी लोगों ने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पीक पर आने लगी अमिड्स द पैंडेमिक, तो हमें लाइक आइडिया हुआ ना कि बहुत सारी ऐसी गोरों की वेबसाइट्स भी बाहर मौजूद हैं, ऐसे अमेरिकन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं एग्जैक्टली, जहाँ पर एक्चुअली टीचिंग के लिए आपको कुछ सर्टेन सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। आपने कोई सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए अपने, आप फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल जिस बिल्कुल एरिया ऑफ ऐसा ही है, एक्सपर्टीज में आप काम करना चाह रहे हैं, तो बस आप कुछ प्रोसीजर फॉलो करें जो उनकी वेबसाइट पे गिवन है, उसके बाद आप आराम से वहां अपॉइंटेड हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा डिफरेंट ही है। आप थोड़े से ना पेइंग के तरीकों पे भी यार आप बताइएगा, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर भी जरा रोशनी डालें। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि पेपैल पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। अब वो ऐसी ऐसी बिल्कुल, चीजें ऑप्ट कर लेते हैं उठा के, जिसकी काम तो कर लेते हैं, ये पेमेंट नहीं आ सकती। दिस समझ वाज वन जाते हैं ऑफ द पार्ट ऑफ माय स्लाइड्स एज वेल। मैंने एक पूरी इसके ऊपर अलग स्लाइड बनाई थी कि क्या क्या वेज हैं पाकिस्तान में पैसे लेकर आने के। तो ट्रांसेक्शन, यस। उसमें एग्जैक्टली, तो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर लोग इसीलिए में वो हो जाते हैं कि जी पता नहीं पैसे कैसे लाएंगे, कर तो लेंगे काम फिर पैसे नहीं लेंगे, हाँ फ्रॉड हो जाएगा, तो देश के लिए जी भी जी। बहुत डर होते हैं। तो खैर, तो अब हम जो बात कर रहे थे कि जी हाउ टू डेवलप अ स्किल, आप अपनी स्किल कैसे डेवलप करेंगे, आपने यही देखना है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, आपके पास क्या स्किल है। जब दोनों चीजें मैच करेंगी तो ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप योर स्किल। आपको पता चल जाएगा अच्छा मैं इसमें अच्छा हूँ, शायद मैं डाटा एंट्री में शायद अच्छा हूँ, मैं शायद टीचिंग में अच्छा हूँ, तो मुझे नए वेज आते हैं, मुझे नए ट्रेंड्स पता है टीचिंग के, तो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर लूंगा। मुझे गैजेट्स को बहुत अच्छी तरह डील करना आता है, तो शायद मैं ऑनलाइन टीचिंग की तरफ चला जाऊं, या मैं ई बुक राइटिंग की तरफ चला जाऊं, या मैं आप मतलब अगर मैं एज अ टीचर बात करूं तो आप ई बुक राइटिंग कर सकते हैं, आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट एज वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक टीचर के अंदर होती हैं, ये सारी स्किल्स टीचर के अंदर ऑटोमेटिकली होती हैं। इसके ठीक है, अलावा और फिर हमारे पास जो यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अपने कोर्सेज बना के कोर्सेज टीचर्स सेल आउट बिल्कुल करने के लिए रख बिल्कुल देते सेल हैं आउट कर सकते हैं। कि उस पर फिर एग्जैक्टली, जो अगर जो स्टूडेंट्स को यानी कि जो रिक्वेस्ट आती है ऑन डिमांड, वो उसको यानी कि सब्सक्राइब करते हैं और हाँ डाउनलोड कर लेते हैं वो पूरा पैकेज बिल्कुल, देखो वही वाली बात है ना कि अगर किसी को कुछ करना होता है तो ऑटोमेटिकली वो फिर रुकता नहीं है, फिर वो अपने वेज खुद एक्सप्लोर कर रहा होता है, और टीचर्स के अंदर ये चीज होती है कि उनको रिसर्च और एक्सप्लोरेशन की आदत वैसे भी होती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट था दैट वाज कि हमने स्किल की बात कर ली, नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो। अक्सर लोग पोर्टफोलियो पे स्टक हो जाते हैं कि जी पोर्टफोलियो क्या चीज है, पोर्टफोलियो क्या किस चीज का नाम है। तो पोर्टफोलियो इज वेरी सिंपल थिंग, इट कुड बी एज सिंपल एज योर गूगल ड्राइव लिंक। मतलब कुछ नहीं है अगर आपके पास, तो आप गूगल ड्राइव पे अपने लिंक्स
अपनी सारा काम अपनी एक गूगल ड्राइव तो सबके पास होती है ना, आपका जीमेल जिसके ऊपर चल रहा होता है, आपका मोबाइल जिसके ऊपर चल रहा होता है, उसमें एक गूगल ड्राइव मस्ट होती है और उस पे आपके 15 GB का डाटा गूगल ने आपको दिया हुआ होता है कि आप उसमें कुछ भी डालें। तो आप अपने सारे काम की फाइल बना के, जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं और आप कंटेंट राइटर भी हैं, आपने अपनी दोनों कामों की पूरी फोल्डर बना दिया एंड देन आपने उस पर लॉक लगा दिया और आपने सिर्फ उसको शेयर, जिसके साथ आपने लिंक शेयर करना है, यू विल बी शेयरिंग दैट विद देम, और आपने उस पर सेटिंग्स कर दी। अब होता क्या है कि आपने जब किसी को काम शो करना है, आपने जस्ट लिंक सेंड किया एंड ही विल बी वॉचिंग योर वर्क। अच्छा, अब इससे थोड़ा एक हाई स्टेप पे अगर हम जाएं तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हमारे पास बिहेंस है, हमारे पास अगर बिहेंस बेसिकली ग्राफिक्स वालों के लिए, आप अगर कंटेंट राइटिंग पे चले जाएं तो वो उसके लिए तो फिर ब्लॉग्स सबसे बेस्ट है कि आप अपना अगर कंटेंट राइटिंग का काम शो करना चाह रहे हैं। फिर अगर आप ऑनलाइन वीडियोस, जैसे अपनी टीचिंग वीडियोस शो करना चाह रहे हैं, तो फिर आप किसी के भी LMS को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना LMS को डेवलप कर सकते हैं। अब तो हम पता है इस दौर में खड़े हुए हैं AI के, कि ये सारी चीजें, मैं अभी मेरी एक स्लाइड इसके ऊपर भी थी कि क्योंकि अब हमारे पास चैट GPT, हमारे पास AI, हमारे पास जनरेटिव AI है, हमें ग्राफिक डिजाइनर्स की इतनी नीड नहीं होती, हमें कंटेंट राइटर की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि अब ये स्किल्स जो है हमें चैट GPT प्रोवाइड कर रहा है। तो अब जो न्यू डेवलपिंग स्किल्स हैं, जिसमें इवन अब वेबसाइट्स भी अगर हम बात करें ना, तो वेबसाइट्स भी ऑटोमेटिकली हमें AI जनरेट करके दे रहा है, वो भी अब कोई मसले की बात नहीं है। वैसे तो हम वर्डप्रेस पे बना रहे होते थे थीम्स के थ्रू, लेकिन अब वो काम भी हमारा चैट GPT करके दे रहा है। तो अब क्या स्किल्स बची, अब वो फिर एक पूरी लिस्ट थी उसकी भी कि जी ई-कॉमर्स हमारे पास अभी भी बचता है, ये काम चैट GPT या AI नहीं कर सकता। हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट अभी भी चाहिए, हमें अपॉइंटमेंट सेटर्स अभी भी चाहिए, हमें डेटा एंट्री मैनेजर्स अभी भी चाहिए, हमें कंटेंट जो लिख रहा है उसको अपलोड और मैनेज करने के लिए मैनेजर्स, कंटेंट मैनेजर्स अभी भी चाहिए, हमें वेबसाइट फ्रीलांस एजुकेटर्स हैं तो पढ़ा तो नहीं सकेगा ना रोबोट या AI बैठ के, इंसान ही पढ़ाएगा मतलब। तो हाँ, ये वाली स्किल्स जो है डिजाइनिंग जनरेशंस वाली, जो जनरेटिव AI काम कर रहा है, ये वाली स्किल्स थोड़ी सी अब डाउन हो गई है। लेकिन देखो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स ये आ जाते हैं कि अगर आप, मैंने जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं humaazam.wordpress.com, उसके ऊपर अगर मैं अपना चैट GPT से लिखवा के भी कुछ डाल देती हूँ ना, तो गूगल उसका एडसेंस करेगा, वो हमें, मुझे ये नहीं कहेगा कि जी आपने तो कॉपी पेस्ट मारा हुआ चैट GPT से, तो फॉर दैट पर्पस इट इज ओके। लेकिन अगर किसी को ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, आप किसी को प्रोवाइड करके दे रहे हैं, आप किसी टीचर को दे रहे हैं, या आप अपना कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप चैट GPT को यूज नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो वहां पे फिर इंसानों की नीड है। हाँ, अगर आपको असाइनमेंट मेकिंग की जॉब्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप वो काम चैट GPT से नहीं करा सकते। असाइनमेंट मेकिंग्स होती हैं आपकी, रिसर्च राइटिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें आप फिर आपको उसकी जॉब्स अवेलेबल है। तो मार्केट इज वेरी ह्यूज, इतनी ह्यूज है कि आप सोचोगे कोई चीज और वो पहले से मौजूद होती है, ये वाला सिचुएशन है। तो अब हम पोर्टफोलियो पे बात कर रहे थे, तो पोर्टफोलियो के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं इससे, और अब मैं बिहेंस से वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, उनके नेम भी अगर कोई मुझसे चाहेगा तो जस्ट वो इस वीडियो के बाद अगर आपके पोस्ट पे कमेंट भी कर देगा तो आई विल रिप्लाई आउट, कि वो पूरी लिस्ट मेरी एक बनी हुई थी, तो उसके ऊपर हम फिर बात कर लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बिहेंस के बाद अगर हम और ऊपर जाएं तो वेबसाइट हो जाती है। अब जैसे मेरी अपनी वेबसाइट है, अगर आप लोग विजिट करो मेरी वेबसाइट पे, तो मेरा पूरा एक कॉलम है जिसमें मेरे सिर्फ व्लॉग्स हैं, फिर एक है जिसमें मेरा डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो बना हुआ है एक टैब पे, फिर एक पे अबाउट मी कि मैं क्या काम कर रही हूँ, तो दैट इज समथिंग इज माई पोर्टफोलियो। मतलब वो दैट सॉर्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो ही है कि मुझे फिर ऑब्वियसली गूगल ड्राइव की, लेकिन जब कोई कुछ नहीं कर सकता सो गूगल ड्राइव इज इनफ। आपने गूगल ड्राइव पे अपना, बिगिनर के लिए तो बहुत इजी है ना, कि थोड़े थोड़े स्टेप्स लें। देखो, क्योंकि आप अगर एक दुकान पे भी कोई चीज बेचना शुरू करते हो तो आप कुछ दिखाते हो कस्टमर को, तो वो बाय करता है ना, आप वो क्वालिटी देखता है उस चीज की, वो चेक करता है, देन ही बाय पड़ेगा ना कुछ पहले। एग्जैक्टली, तो दिस इज बेसिकली अ शोकेस ऑफ योर स्किल, दिस इज अ शोकेस ऑफ योर टैलेंट, कि आप कितने कैपेबल हो, आप एक जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपको इंटरव्यू और टेस्ट और डेमोज देने पड़ते हैं दिखाने के लिए कि जी मैं मेरा कैलिबर ये है। सो दिस बेसिकली इज रिक्वायर्ड, पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड थिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल जरूरी है, देन हाँ, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज एडिशन करूँ कि देखो स्किल्स और पोर्टफोलियो और कम्युनिकेशन की बात मैं जो कर रही हूँ, दिस इज फॉर फ्रीलांसर्स। पैसिव इनकम, जैसे अब यूट्यूब चैनल है, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने उसके ऊपर कंटेंट, अगर मैं अपना फेस नहीं, मैं टीचिंग नहीं भी कर रही, मेरे पास स्किल नहीं भी है, मैंने सिर्फ कंटेंट अच्छा बना के डालना शुरू कर दिया, दैट इज फाइन, पैसिव इनकम में मेरी इनकम जनरेट होगी।
ठीक है, लेकिन उसके लिए भी टेक्निकलिटीज, उसके लिए कंडीशंस समझने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रॉपर एक या तो आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख के समझ लें। जरूरी नहीं कि आप किसी का पेड कोर्स ज्वाइन करें, जरूरी नहीं आप किसी की वर्कशॉप्स अटेंड करें। आप अगर फ्री सेशंस ही इंशाल्लाह, देखो अपकमिंग मंथ में आई विल बी डिजाइनिंग अ वेब सीरीज लाइक दैट, के उसमें हम एवरी वीक एक इन्फ्लुएंसर को, फ्रीलांसिंग वाले को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को, किसी दिन हम एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आ रहे होंगे इस प्राग पे, तो वी विल बी कंडक्टिंग दैट सेशंस। तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प अ लॉट, और Looking दोज विल बी forward to फ्री that सेशंस। session, inshallah. All the best to you for that. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एंड इट विल हेल्प पीपल अ लॉट, कि जो Definitely, टीचर्स definitely. स्पेसिफिकली देखना चाह रहे हैं, करना सीखना चाह रहे हैं, तो दे कैन क्योंकि आपको वॉच पता दैट है सीरीज। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे बिल्कुल, ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर वो फंसते हैं ना, एग्जैक्टली, द पॉइंट दे गेट स्टक, वो सिर्फ ये है कि कैसे करें, हाउ, ये कैसे हाउ करें। फैक्टर उन्हें इतना डिस्टर्ब करता है ना, कि इसकी वजह से वो अच्छी खासी स्किल्स को जंग लगा रहे होते हैं फारिग बैठ हाँ, के, और समझ ये रहे होते हैं कि हम टीचर्स हैं तो शायद हम तो कुछ और कर नहीं कुछ सकते, कर नहीं जबकि सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। फ्रीलांसिंग बेसिकली इज अ थिंग कि जो जिसके पास हाई पेड डिग्रीज नहीं है वो ही फ्रीलांसिंग कर रहा होता है। माशाल्लाह दे आर अर्निंग इन ह्यूज। बहुत अब मैं आपको बताऊं, मैंने प्रॉपर्ली, मैंने मतलब इंटरनेशनल, यस। मैंने जॉब छोड़ी है तो मैं घर में आराम कर रही हूँ ना, बहुत मजे से बैठी हुई हूँ, लेकिन आई एम अर्निंग दैट मच कि ऑब्वियस सी बात है मेरी वो जॉब कंपनसेट हो रही है, तभी मैं इतने आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। बैठी हुई हूँ। तो यस, दिस माशाल्लाह। इज बेसिकली इज द आइडिया कि आपने स्टार्ट तो कहीं से लेना है ना, यू विल हैव टू यार कम वही आउट ऑफ आपकी योर वाली बात कंफर्ट है ना, कि जोन। देखिए अगर 14 साल तक मेरा खुद के, मुझे टीचिंग इंडस्ट्री में 14 साल हो गए ना, अब अगर 12 साल तक मैं स्कूलों में रही, 2 साल से मैं जो घर बैठी हूँ इतने चिल होके खाली ऑनलाइन बच्चे पढ़ा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग बन रही होगी, जब भी तो मैंने स्कूल की एक प्रॉपर लगी बंदी जॉब छोड़ी ना, वेयर आई वाज वर्किंग एज अ एग्जैक्टली, परमानेंट फैकल्टी, मतलब। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यही चीज, यही बात ऑब्वियसली है कि देखो, मैं एक बात कहती हूँ कि कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन मेंटल पीस से इंपॉर्टेंट नहीं होता। हकीकत, आजकल जो वेरी ट्रू। टीचर्स के मेंटल पीस का हाल है स्कूल्स में, आई 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 लिटरली वांट टू चेंज दैट सिस्टम, कि किसी तरह मैं इसको चेंज कर सकूं, कि बहुत बुरा हाल है, टीचर्स इतने मेंटल यार टॉर्चर का एवरी शिकार अदर हैं हम। पर्सन इज फेसिंग बर्नआउट। मेरे खुद एग्जैक्टली, पे लीजर टास्क एग्जैक्टली, की वजह से आई हैड टू बैक ऑफ, थोड़ा सा खुद को टाइम देने के लिए, बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही हो गया था एक अरसे तक नॉन स्टॉप हम्म, जा जाके काम बिल्कुल। करना मुसलसल। तो फिर इसी में यही है कि अच्छा जी, अब ये वैन पे तो हमने बात कर ली कि कब स्टार्ट करना है, जब आपके पास ये तीन चीजें आ जाएं, देन यू कैन स्टार्ट। अब इसके बाद आपकी आ जाता है स्किल्स, हाउ। आपकी कम्युनिकेशन, और आपने तीसरा क्या बताया था? आपकी स्किल्स, पोर्टफोलियो एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, पोर्टफोलियो का यस। मतलब है कि समथिंग टू डिस्प्ले। यस। जरूरी नहीं है कि आप, मैं उसको पोर्टफोलियो कह रही हूँ तो आपको एक पोर्टफोलियो ही बना हुआ होगा, तो समथिंग टू डिस्प्ले, इवन इफ इट इज योर फेसबुक पेज लिंक, दैट इज फाइन। आपने अगर अपने फेसबुक पे भी कुछ बना के डिस्प्ले किया हुआ है तो आप उसका लिंक शेयर कर दें कि दिस आपके इज माई वर्क। की अगर प्रोफाइल है, वहां आपने अपने बारे में कुछ चीजें डाली एग्जैक्टली, हुई हैं, तो एग्जैक्टली, फाइन। फाइन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका हाउ, स्टार्ट कैसे करना है, आपने क्या बिल्कुल। करना है सबसे पहले। तो बेसिकली आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने ये सारी चीजें देख ली। इसके बाद आपने अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। विजिबिलिटी का मतलब, सबसे ज्यादा अब जरूरी। चाहे देखो इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी एज योर फेस, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप अपनी वैसे विजिबिलिटी बढ़ाएंगे। अगर आप कोई एज ए ग्राफिक डिजाइनर कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज की विजिबिलिटी बढ़ाएंगे। यानी आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ब्रांड अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि चाहे ब्रांडिंग वो बहुत आप, important। हाँ, जैसे अगर स्प्राउट को प्रमोट कर रही हूँ या आप अगर अपलिफ्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो टीचर लोगों को ये पता होना चाहिए हु इज द पर्सन बिहाइंड अपलिफ्ट, हु इज द पर्सन बिल्कुल। बिहाइंड स्प्राउट। दिस इज बेसिकली अ ब्रांड अवेयरनेस, कि अगर आपने कोई काम करना है, आपने एज अ फ्रीलांसर का, अगर इसके भी दो तरीके हैं। एक होता है कुछ लोग अपना फेस शो करके काम करते हैं, कुछ लोग बगैर फेस शो किए, कुछ लोग बिहाइंड द जैसे कैमरा रह आपने, के काम करते हैं। हाँ, एक कुछ ऐसे आपने एजेंसी बना ली, आपने एक एजेंसी का नाम रख दिया, आपने जस्ट उसी की ब्रांडिंग की, उसी की मार्केटिंग की, उसी को पब्लिसाइज किया। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जी मैं काम कर रहा हूँ एंड हुमा आजम इज वर्किंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर, या मैंने अपनी जैसे वेबसाइट का नाम रखा हुआ है humaazam.wordpress.com, तो दिस इज डिस्प्लेइंग माय पर्सनल आइडेंटिटी, और वो मेरे ब्रांड की आइडेंटिटी साथ साथ डेवलप होगी। तो देयर इज टू वेज, जो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करना चाहते हैं, इट इज ऑल्सो फॉर देम एज वेल। तो ये आ गया कि आपने किस तरह करना है, कि आपने सबसे पहले अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, फिर आपने नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग इज द की फॉर फ्रीलांसिंग। ये बहुत पहले शुरू में जब मुझे लोग कहते थे तो मुझे लगता था कि यार नेटवर्किंग में क्या होगा, मतलब क्यों,
लेकिन अब मुझे लिटरली अंदाजा होता है कि नेटवर्किंग, आपने देखा होगा कि फेसबुक प्रोफाइल पे अगर आप 2 लोगों को ऐड करो तो तीसरी दफा फेसबुक आपको खुद ही सजेशंस सिमिलर देना शुरू कर देता है कि ये बंदा भी है, ये बंदा भी। तो उनके एल्गोरिथम्स ऐसे काम कर रहे किस होते हैं तरह कि से वो करते हैं? ऑटोमेटिकली आपको प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म इस वक्त हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म इस वक्त पाकिस्तान की बहुत, इसके भी स्टेट्स मेरे स्लाइड में थे कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत कम समझ लें आप पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त लिंक्डइन पे है, और जिसमें क्योंकि लिंक्डइन इज अ अवेयरनेस नहीं है ना हमारे लोगों को, अवेयरनेस। अभी एग्जैक्टली रिसेंटली मेरा मकसद यही था, अभी एक पिछले दिनों ट्रेनिंग करवाने का, उसमें भी आप देखें आवाम की नॉन सीरियसनेस, इतना दुख होता है देख के। अगर रजिस्ट्रेशन 30 बिल्कुल बंदे ने ऐसा ही है। करवाई तो बस है ना गिनती के 8 लोग आके बैठे, उसमें से ये भी आते हुए यही है। 3 रह गए अच्छा, थे, आखिर में 3 रह गए थे। हमारे पास प्रॉब्लम ये भी है थोड़ा सा हमारे अवाम का कि जी फ्री में हो ना तो फिर वो रजिस्ट्रेशन तो बड़े मजे से हो जाती है, उसके बाद कहते हैं फ्री है ना, छोड़ो कोई बात नहीं, यार बाद में मैंने तो सीखेंगे। पेड में भी लोगों की मतलब केयरलेसनेस का वो आलम देखा है, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब बस हमें रिकॉर्डिंग दे दें, हम बाद में देख लेंगे। और बाद में देख वो लेंगे। बाद कभी नहीं आता, फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस बन जाता है, मतलब सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल लाइक बिल्कुल अपने ट्रू। करियर को लेके इतना 100% ट्रू। लेड बैक होते हैं लोग, इतना लेड बैक होते बिल्कुल हैं कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही है कि ज़ैको, अब जब तक, लेकिन अगर आप कुछ चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तो अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि अपनी तकदीर बदलनी है तो आपको अपने आप को बदलना खुद पड़ेगा। बदलना सबसे पहले पड़ेगा, अपने आप से जाहिर है, स्टार्ट करना बिल्कुल पड़ेगा। तो बिल्कुल अपने बिल्कुल। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको, अपनी नेटवर्किंग का मतलब है कि देखो, नेटवर्किंग करने के लिए भी बहुत सारी जगह हैं। आप अपने फेसबुक पे नेटवर्किंग कर सकते हो, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे लिंक्डइन, मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें आपको ग्लोबली काम मिलता है, और खासतौर पर ये अपवर्क और फाइवर तो समझ लो करते ही ऐसे काम है कि जो इनकी जॉब्स होती हैं वो अपवर्क और फाइवर से कनेक्टेड होती हैं कि आप अगर जी वहां पे जी एक दो क्लाइंट्स भी सेटिस्फाई कर देते हो तो ऑटोमेटिकली इट विल शोइंग यू अप मोर प्रोजेक्ट्स ऑफ अपवर्क एंड फाइवर। तो थोड़ा सा ना, लिंक्डइन इज अ आई वेरी एम रियली बेस्ट सॉरी, प्लेटफॉर्म। आई एम कटिंग यू इन द मिडल, आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा नहीं सर्च नहीं, कोई इंजन बात नहीं। ऑप्टिमाइजेशन पे आप एक जरा बात करें, क्योंकि अभी इस पे हमारी भी कर आवाम को लेते ये हैं। भी नहीं पता ना कि कैसे ढूंढनी कैसे है डिजायर्ड जॉब। एग्जैक्टली यही हमारा हमारा डायलेमा यही है। और खासतौर पर अगर जैसे मैं लिंक्डइन की बात करी थी ना, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक तो सबसे पहले तो आपको ग्लोबली लोग मिलते हैं, दूसरा आपको सीरियस लोग मिलते हैं। सबसे मेन चीज देखो, फेसबुक पे हर दूसरा बंदा आपका है, मतलब यूज कर रहा है, लेकिन लिंक्डइन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, जिनका जो बेसिकली सीरियस है काम करने के लिए, काम लेने के लिए, काम देने के लिए। तो लिंक्डइन पे तो मैं हर टीचर को सजेस्ट करूंगी कि देयर मस्ट बी हैविंग, टीचर को भी एंड इवन अलग, अगर हमारी हाउसवाइफ भी हैं, हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सबको लिंक्डइन पे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर यही सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर आप अपने कॉन्फ्रेंसेस, अगर आप मीटअप्स उसका कहीं नाम अरेंज आप कर रहे देखें हैं। ना, उसका नाम कितना प्यारा है, लिंक्डइन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो एग्जैक्टली तो कर ही एग्जैक्टली। लिंक रहा है लोगों को, हम्म। मतलब सो तो या। खैर मैं आज से कोई 6 या 7 साल पहले लिंक्डइन पे गई थी, उस वक्त मेरा प्रोफाइल बड़ा खाली पड़ा रहता था ना, लेकिन अभी ये 2-3 साल पहले से थोड़ी सी ज्यादा अवेयरनेस आई तो हमें भी लगा यार, मतलब लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और आपका तो बहुत अच्छा एक समझ लो असेट है कि आप इसको वो तो अगर मुझे भी अच्छी एक तरह तरह यूज से करें तो। 10 साल से ज्यादा गए लिंक्डइन पर, बट वही ना, अकल आते आते आती है, एक्सप्लोर करते आते करते आते हम बिल्कुल सीखते हैं। ऐसा ही है। तो 10 साल से बिल्कुल बैठे ऐसा तो ही गए है। हैं तकरीबन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हाँ, एक्सप्लोर किया और अब समझ आ रहा है कितने बेनिफिट्स हैं उस जगह के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर ये है, आप फिर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, आपकी नेटवर्किंग वहां से हो जाती है, फिर आप अपने जैसे कोर्सेज अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी नेटवर्किंग हम्म। वहां से हो जाती है। तो नेटवर्किंग इज अ नेम कि आप लोगों से कनेक्ट करें, लोगों को आपका पता चले। होता क्या है कि जैसे मैं अगर ऐसा ग्राफिक डिजाइनर काम कर रही हूँ ना, मेरे पास काम ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना काम पिच कर देते हैं। पिच करने का मतलब ये होता है कि वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि जी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, एक काम करो, तुम ये काम कर लो। तो इससे आप जब नेटवर्किंग में कनेक्टेड होते हैं लोगों से, तो ऑटोमेटिकली आपको काम मिलता है, लोगों से काम मिलता है। ठीक है, रिकमेंडेशंस मिल रही होती है ना। एग्जैक्टली exactly. तो ये हमारा होता है कि हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। नेटवर्किंग हो गई, आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो गई, आपकी विजिबिलिटी बढ़ानी हो गई, और आपको अपने आप को प्रमोट करना हो गया। तो ऑटोमेटिकली जब आप फ्रीलांसिंग में काम स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। फिर आपकी आ जाते हैं अपवर्क पे प्रोफाइल बनाना, फाइवर पे प्रोफाइल बनाना, इन सारे प्लेटफॉर्म, ये जो नेटवर्क मार्केट प्लेसेस हैं, नेटवर्किंग प्लेसेस हैं बेसिकली, इन पे काम करना। फिर आप अपना अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नेटवर्किंग की तरफ लेके जाती हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया हाउ ऑफ फ्रीलांसिंग, हाउ टू स्टार्ट बेसिकली। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, वेयर टू डू।
कहाँ पे करना है, जगह कौन सी है, कैसे स्टार्ट करना है, किस पे। तो इसका जवाब बहुत ईजी है। अच्छा, अब तुमने एसईओ का बोला है, उसको मैं थोड़ा लास्ट में लेके जा रही हूँ। अभी श्योर मैं श्योर। थोड़ा सा ये बता दूं कि हाउ पे ये भी चीज आ जाती है कि जब हमें पेमेंट, अब हमने काम कर लिया जी, हमने डिलीवर भी कर दिया, अब हमें पेमेंट चाहिए। तो पाकिस्तान में जो पेमेंट मेथड्स हैं वो इस वक्त, देखो पेपल पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेपल इज नॉट येट अराइव्ड। अभी अभी वेरी सून इंशाल्लाह वी आर और गोइंग टू जो लोग लिसन अभी तक गुड न्यूज। बातें कर रहे थे ना कि आ गया वगैरह, ये वो सब नहीं नहीं बातें नहीं, करते आया हैं, तो अभी तक स्कैम नहीं है, है। ऐसा कुछ नहीं है। यस। लेकिन ये है कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है कि जी पेपल इज अलाउड नाउ। अब वो देखो आते आते भी उसको, जैसे अमेजोन को भी आते आते लगे थे टाइम। असल में हमारे पास प्रॉब्लम यही है कि अमेजोन भी पहले आया था एक दफा 2012 में, लेकिन वो बैन हो गया था, इसलिए मतलब बैन हमारे लिए बैन हो गया था, इसलिए और अभी भी कि आप देखें तो हमारी बहुत जेंट्री। सर्टेन चीजें उसकी एप्लीकेबल है हमारे कंट्री में, अभी भी हाँ आप वहां हाँ, जाएं बिल्कुल ऐसा तो ही है। सब आता है कि इट्स नॉट एप्लीकेबल इन योर जोन, मतलब वहां पे। इसलिए देखो हमारे पास क्या है, हम हैं पाकिस्तानी ना, थोड़े से क्या कहने से चाहिए, हमें जुगाड़ के आइडियाज बहुत ज्यादा हमारे दिमागों में आ रहे होते हैं ना। हमको भी तो इस चीज में बहुत ज्यादा। ज्यादा और उन थोड़ी सी खराब मछलियों की वजह से अच्छी जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी बेचारे फिर जाहिर सी बात है सफर कर रहे होते हैं। तो कि कभी कोई चीज पार्सल में गलत चली गई, किसी को कुछ पैक करके दे रहे हैं, किसी के अंदर से कुछ निकला, दैट इज वाई इन 2012 इट वाज बैंड। अमेजोन पहले आया था। अब दोबारा से काफी कोशिशों के बाद जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो जिनमें बड़े नाम, हिशाम सरवर हो गए आपके, सनी अली हो गए, ये सारे बड़े बड़े, इनको सबको फॉलो करना चाहिए। अगर जो फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं वो हाँ, हिशाम सरवर, आजाद चायवाला, आपके ये आपके सनी अली हो गए, आपके साकिब अजहर हो गए, इन सबको फॉलो करें ताकि आपको पता लगे कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं। आपके इरफान मलिक हो गए, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं बेसिकली। सही बात है। मतलब थोड़ा सा ओके, आई थिंक हमारी गेस्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी आपने देखा था कि थोड़ा सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू था एक्चुअली, हर पावर्स जस्ट वेंट आउट, और थोड़ा सा यही रीज़न है कि उनकी स्लाइड भी बीच में बंद हो गई, बट आई एम रियली ग्लैड शी स्टिल मेड इट। एंड माशाल्लाह इतनी सारी आप लोगों को जो बातें बताई, जो आप लोगों को अवेयर किया, तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप उनको जो है वो टिप्स को फॉलो करें। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, आई कैन सी दैट यू जॉइन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अच्छा, जो अब मिस ने अभी आपको सारे नाम बताए जो इन्फ्लुएंसर्स ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के हवाले से, वो तमाम हो सका तो उन लोगों के लिंक्स अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगी, उनकी वेबसाइट, और वो कुछ इंपॉर्टेंट जो उन्होंने एक जापानीज फ्रेज को एक्सप्लेन किया था जो साइकिल फ्रीलांसिंग के लिए, तो वो मैं वहां पर ड्रॉप कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। आई वुड रियली अप्रिशिएट इनपुट जो आप लोगों की तरफ से होगा, आप लोग अपनी तरफ से दें, आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिएगा वहाँ पे, वील गेट बैक टू यू अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह। और प्लीज़ एक यही रिक्वेस्ट है, खास करके उन तमाम लेडीज से, उन सारी खवातीन से, इवन जैसे कि अभी आपने देखा हमारी गेस्ट ने कहा कि इवन अगर कोई हाउस वाइफ भी है, स्टे एट होम पेरेंट है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई मीन इट्स नॉट मैंडेटोरी कि आप कोई बहुत बड़े प्रोफेशनली हो, आप कोई एक्चुअली डिग्री होल्डर हो, आप बाहर जाके कमाएं। अगर आप सिंपल एक स्टे एट होम पेरेंट भी हैं, स्टिल यू आर डूइंग अ फुल टाइम जॉब बाय स्टेइंग एट होम, राइट? सो आप प्लीज अपने आप को विजिबल करें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर। और वही वाली बात कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने आप को एज अ अपना फेस ही सामने लाना है, जैसे अभी आपको बताया मैं जुमा ने कि आप अपने सर्विसेज के ज़रिए भी फेमस हो सकते हैं। बस इस तरीके से आपने काम करना है कि ऑडियंस को ये लाजमी पता हो कि उस सर्विस के पीछे प्रोवाइडर कौन है। यू शुड बी आउट देयर इन द मार्केट, राइट, इन ऑर्डर टू बी नोन, एंड अपना काम को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर इससे जो है वो आपको, आपकी अवेयरनेस जब ऑटोमेटिकली बढ़ेगी आपके काम की, मार्केट में आपके ब्रांड की, तो खुद ही आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। कोई भी आपको फर्दर टिप्स, कोई ट्रिक्स या कुछ भी ऐसे मजीद आपको सजेशंस चाहिए, कोई कुछ बात पूछनी है, फील फ्री टू रीच अस आउट वाया दी कमेंट सेक्शन, द प्राइवेट इनबॉक्स, वील गेट बैक टू यू। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऐसा क्वेश्चन हो जिस पे आप चाहते हैं हम एक पूरी नई सीरीज लेकर या एक नया कोई इस तरह से कोर्स लेकर आए आपके लिए, तो उसको भी आप रेकमेंड जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह वी लुक इनटू इट। ठीक है, बाकी एक छोटी सी बात, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओज पे हम करने जा रहे थे लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गई, तो मैं ये मेंशन कर दूं कि एसईओज बेसिकली हम उन की टर्मिनोलॉजीज को कहते हैं जो जब आप जहाँ पे यूज करेंगे अपने हैशटैग्स के साथ और वहाँ पे वो कीवर्ड्स, तो उससे आपको जो है वो काम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, इन तमाम जगहों के एल्गोरिथम्स इसी तरह वर्क करते हैं कि आपको वो उन यानी कीवर्ड्स के थ्रू उस प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट करेंगे डायरेक्ट, जो वो काम ऑफर कर रहे होते हैं।
सो मेक श्योर टू यूज द अप्रोप्रिएट मतलब कीवर्ड्स। इन्हीं चीज़ों को हम इन अदर वर्ड्स गिग्स कहते हैं, जो अपवर्क और फाइवर पे इस्तेमाल होती हैं। वहाँ पर जब आप अपना काम प्रेजेंट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो आप लगाते हैं, या तो जो सामने वाला लगाता है जिसे आप अवेल करते हैं फॉर योर वर्क, राइट? सो इंशाल्लाह फर्दर आई विल गेट बैक टू यू। वैसे भी आवर स्ट्रीम इज ऑल्सो अबाउट टू कम टू एन एंड, सो यहाँ पे आई विल जस्ट बिड यू पीपल फेयरवेल इंशाल्लाह। और अब इंशाल्लाह गेस्ट नंबर 8, 9 एंड 10 के साथ बस इंशाल्लाह सून इन द कमिंग वीक मैं दोबारा आऊँगी। होपफुली आप लोगों ने आज तक इन तमाम एपिसोड से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हासिल किया होगा। इंशाल्लाह कोई ना कोई तो हासिल वसूल रहा होगा इनका, इस तमाम अवेयरनेस का। तो और जिन्होंने अगर नहीं देखा तो वो मेरी प्रोफाइल पर भी और मेरे ग्रुप पर भी जाकर देख सकते हैं। तमाम लिंक्स और एपिसोड्स, पॉडकास्ट सारे वहाँ मौजूद हैं, और तमाम गेस्ट्स के अपने लिंक्स भी मौजूद हैं उनकी प्रोफाइल के, इफ़ इन एनी वे यू पीपल वांट टू गेट कनेक्टेड विद देम, ठीक है? सो इंशाल्लाह थैंक यू फॉर जॉइनिंग द पीपल हु हैव डन, एंड बाकी कोई भी क्वेश्चन एज आई सेड यू कैन फील फ्री टू ड्रॉप इट एंड वी गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच लाइबा फॉर योर कमेंट। एंड कोर्स ज़रूरी नहीं है यार कि हम हर दफ़ा हर जगह से कोर्सेज ही करें, हर जगह पैसे इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं होते। अभी उन्होंने यही कहा ना कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपके पास बहुत अवेयरनेस मौजूद है, आप इतनी सारी वेबसाइट्स हैं रिसर्च की, आप उसकी हेल्प लें। आप चैट जीपीटी से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पूछें, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और पैनल्स पे, फोरम्स पे। आप वहाँ जाएं, आप पढ़ें, अपनी रीडिंग, अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। बिकॉज ऐसे ही नहीं कहा जाता ना, रीडर्स आर लीडर्स। अपनी रीडिंग को, अपनी रिसर्च को, अपनी एक्सप्लोरेशन को और डिस्कवरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। हर जगह हर चीज़ में सिर्फ पेमेंट करके कोर्स में जाके बैठ जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। बहुत सारी दफ़ा हमें खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज नो पेन्स नो गेन्स। वही वाली बात है ना। देखिए कोर्सेज भी करेंगे तो अगेन उसमें इनपुट तो हमें अपना ही देना है ना। ट्रेनर होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, करवाने वाला टीचर होगा, जो भी होगा वो तो काम करवा देगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम हमने करना है, रिसर्च हमने करनी है, आगे पढ़ाई हमने खुद करनी है, उसकी असाइनमेंट हमने खुद करने हैं। तो जब तक अपने पास से हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारी टाइम की और हमारी एफर्ट्स की, एंडेवर की नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी चीज़ों का एक मतलब यानी कि हमें आउटकम नहीं मिलता। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश करें इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, इस एलिमेंट को, और चीज़ों को सीरियसली हम लेना जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा कुछ। तो इंशाल्लाह इसी बात के साथ इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी अब कमिंग डेज में, ठीक है? तब तक के लिए एवरीबॉडी टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू स्प्रेड ऑल दीज पॉडकास्ट एज फार एज यू पीपल कैन। स्प्रेड द वर्ड अराउंड, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी इन्फॉर्मेटिव, सबके काम आएंगी इंशाल्लाह। ये हम कर रहे हैं तो इन चीज़ों का एक मकसद है, ठीक है? सी यू पीपल सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।